So today we will discuss the next part of the chapter number 13, magnetic effect of current. Previously we have discussed up to the magnetic field of a straight current carrying conductor. So today we will discuss that what is the field of a conductor when it is in the shape of ring or it is in the shape of loop. Means we will change that straight conductor in the shape of loop and we will check that what is its magnetic field, how its magnetic field look like, and on what factor does the magnetic field of that loop depends. So before going to start that chapter, first we have to perform an activity. What we have to do for that? Again you will take a cardboard, make two holes in that cardboard. One hole is there, another hole is there, and take that circular wire. Means you will pass one end to this and then going through that end and downside. Means that is your coil. Clear? After that, sprinkle here the iron powder. Clear? Then on the circuit, then the current start flowing through that wire and again start tapping from the downside that cardboard. So that iron powder rearrange themselves in the form of magnetic field line of a loop. So what we have to do here, we will take a conductor. For example, this is your cardboard, this is your cardboard. So these are the two holes through which you have to pass the wire. ये वो दो होल है जिसमें वायर को हमने पास करवाना है. क्लियर? देन वी विल कनेक्ट दीज wire to a battery and then we will pass the current through it. So now we will see here that part of this wire and this part of this wire behave like a straight conductor. So we will see here there are again the concentric circle like this. So this is the field of a circular loop or when a wire in the shape of loop. So what we have seen here, this is a diagram on the basis of cardboard. What we have seen the magnetic field lines. And if we draw the loop diagram, so this is the loop diagram. For example, this is your loop. Clear? And this is this straight line. And after that there are the concentric circle like this. So this is the field of a current carrying loop. Means when the current is flowing through that wire behaving like a magnet and the field of that magnet is like this. So how the field depends? These field again depend on the current. Means larger the current value, more will be the strength of magnetic field, and also that field is inversely proportional to the radius. Previously it is a distance from the conductor, now your loop is in the form of circle. So if that is in the form of circle, so this is the radius of the loop. And B is also depend on number of turns. Means अगर हम number of turn को बढ़ा देंगे, अगर एक लूप में एक टर्न है, फिर दो टर्न है, फिर तीन टर्न है, फिर चार टर्न, जैसे जैसे उसकी लूप की बढ़ेंगी, क्योंकि एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक टर्न मतलब एक सर्कुलर रिंग, दो टर्न मतलब दो सर्कुलर रिंग, तो जब सारी की सारी सर्कुलर रिंग जो आपकी एड अप होंगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जाएगा ज्यादा हो जाएगा. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी करंट कैरिंग लूप का, सर्कुलर लूप का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? करंट पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न. लार्जर द नंबर ऑफ टर्न, लार्ज विल बी द वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि स्ट्रेट कंडक्टर का फील्ड ज्यादा होगा या फिर सर्कुलर लूप का ज्यादा होगा. द आंसर इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लूप इज मच मोर ग्रेटर देन द स्ट्रेट कंडक्टर बिकॉज द सर्कुलर लूप इज मेड अप ऑफ बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर्स. मींस कोई भी जो सर्कुलर रिंग है ये बनी हुई है स्मॉल स्ट्रेट कंडक्टर से, लाइक दैट कि ये पार्ट हो गया इस कंडक्टर का स्ट्रेट, फिर ये पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट हो गया. So the field of these all part combine and due to that the whole field of a ring is much more greater than the straight conductor. So this is the field. Again I'm repeating. यहाँ से हमने क्या करना है, इस वायर को पास का एक बार दोबारा एक्टिविटी बताता हूँ क्या करना है. ये कार्डबोर्ड लेना है, आपने एक तार ली, उस तार को आपने एक होल यहाँ की, एक होल यहाँ किया, इस होल में से तार को ऐसे पास करवा दिया, नीचे उसको बैटरी से जोड़ दिया. क्लियर? अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये और ये आपके एक स्ट्रेट कंडक्टर के पॉइंट बन गए. अब इसके ऊपर आयरन पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया, नीचे से हमने कार्डबोर्ड को टैप करना शुरू किया. उसके बाद जब आपका कंडक्टर को आपने ऑफ कर दिया जिसमें से करंट ऑफ हो गया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आयरन पाउडर था वो इस शेप में रीअरेंज हो गया ऑन द कार्डबोर्ड. एंड दीज आर द फील्ड लाइन ऑफ अ लूप, और ये आपकी फील्ड लाइन है लूप की. तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप. अगर दोनों कंपेयर करें स्ट्रेट को और लूप को, तो लूप का जो फील्ड होगा वो मच मोर ज्यादा होगा
किसके कंपैरेटिवली? स्ट्रेट कंडक्टर के कंपैरेटिवली। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सोलेनॉइड। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सो बिफोर गोइंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट कि व्हाट इज सोलेनॉइड। सो व्हाट इज सोलेनॉइड? द सोलेनॉइड इज insulated copper wire of many turns in the form of tight spring। कि ये आपकी एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है ऑफ मैनी टर्न्स इन दी फॉर्म ऑफ टाइट स्प्रिंग। स्प्रिंग सभी ने देखा ही है, तो उसकी फॉर्म में एक्चुअल में सोलेनॉइड क्या है? एक सिलेंड्रिकल, हमने क्या किया कि आपका कोई भी, हमने अगर मैं ये चौक ले लेता हूँ, इस चौक के ऊपर मैंने क्या किया कि आपकी जो कॉपर है उसको मैंने टर्न ऐसे घुमाना शुरू कर दी, क्लियर, और फिर इस चौक को बाहर निकाल दे तो बन गई आपकी सोलेनॉइड। क्या बन गई आपकी? वो सोलेनॉइड। मतलब उसकी शेप सिलेंड्रिकल है और वो एक टाइट स्प्रिंग की फॉर्म में है। अगर इसकी मैं शेप ड्रॉ करता हूं तो ये बोर्ड पे इसकी शेप ऐसे आएगी। तो ये आपकी क्या है? सोलेनॉइड है। दिस इज योर सोलेनॉइड। तो व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मैनी टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अ टाइट स्प्रिंग, और यू कैन से क्लोजली वाउंड इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मैनी टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये किसकी फॉर्म है? सिलेंडर। लेकिन दिस इज इजी डेफिनेशन, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मैनी टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ टाइट स्प्रिंग। तो उसको अपन इंसुलेटेड कॉपर वायर की मैनी टर्न्स को हम कहते हैं सोलेनॉइड। अब इसके फील्ड की बारे में बात करनी है अपने। तो जब बेटा इसमें से हम फील्ड करंट पास कराएंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका करंट यहां से आया और ये करंट यहां से वापस चला, तो इसका फील्ड कैसा होगा? तो अगर हम इसके फील्ड की बात करते हैं, द फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। अगर हम बात करें बार मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है आपका? साउथ पोल होता है, क्लियर। तो अब पहले इसके फील्ड की बात करते हैं। तो पहले आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पास करवाई, उसके बाद आपकी एक ये लाइन आई ऐसे, उसके बाद ये लाइन है, तो ये फील्ड इनसाइड हो गया। उसके बाद ये जो आपका फील्ड है ये हो गया इसका आउटसाइड फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड आउटसाइड। तो जो इसका फील्ड है बेटा इट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। किसकी तरह सिमिलर है? ये बार मैग्नेट की तरह से। अब बात आती है कि इनसाइड फील्ड कैसा होगा, आउटसाइड फील्ड कैसा होगा। कि बेटा जो इनसाइड फील्ड होगा वो होगा यूनिफॉर्म है, तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर। और जो आउटसाइड फील्ड है वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी, क्लियर। और जैसे जैसे हम, आप देखो यहां से कि ये गैप को आप देखो, जैसे जैसे हम इसकी बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। अगर ये गैप बढ़ेगा तो एट द एंड जो होंगे सोलेनॉइड के वहां पे फील्ड वीक होगा, क्लियर। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे गैप देखें और यहाँ पे गैप देखें, तो ये गैप ज्यादा है और ये गैप कम है। तो जो फील्ड होगा सोलेनॉइड का वो जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाएंगे वो वीक होता जाएगा। और जो उसका बीच का रीजन होगा, यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर एक आपका क्या है बार मैग्नेट है, इसका मतलब बार मैग्नेट सिमिलर है, तो अगर इसका एक एंड मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब यहां से जो फील्ड लाइन है वो ऐसी आएंगी, क्लियर। और जो ये वाली होंगी आपकी ये नॉर्थ टू साउथ चलेगी। अब जो फील्ड की डायरेक्शन है कि कब कौन सी एंड इसका नॉर्थ पोल बनेगा, कब इसका साउथ पोल बनेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपने देखना है कि अगर एक नॉर्थ बन गया दूसरा क्या बनेगा? साउथ बनेगा। इसको हम लूप रूल से जानते हैं कि कब नॉर्थ पोल होगा, कब क्या होगा आपका साउथ पोल होगा। अब ये थी आपकी सोलेनॉइड क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मैनी टर्न इन दी फॉर्म ऑफ टाइट स्प्रिंग। इसमें से करंट पास कराते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इसका जो फील्ड होगा दैट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। किसकी तरह होगा इसका फील्ड? बार मैग्नेट। इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। जो इनसाइड फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म है तो स्ट्रॉन्ग होगा। जो आउटसाइड फील्ड है, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे वहाँ पे है, तो वो फील्ड आपका क्या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस फील्ड को आप वीक कहेंगे। अब इसी से नेक्स्ट टर्म आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? कि जब हम जो उसका अंदर का जो होलो रीजन था, जो आपकी टाइट स्प्रिंग था, उसका जो होलो रीजन था, अगर उसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन
कोर डाल दें, सॉफ्ट आयरन मतलब कि सॉफ्ट आयरन उसके अंदर डाल दिया तो आपका जो आयरन है वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि इफ वी इंसर्ट सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ सोलेनॉइड सो दैट आयरन बिकम अ मैग्नेट एंड नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है आपका, कि जब किसी भी सोलेनॉइड के अंदर हम क्या इंसर्ट कर देंगे, सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देंगे तो आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, मींस वो एक मैग्नेट बन जाएगा। उसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक साउथ की तरह बिहेव करेगा। और जब तक उसमें से हम करंट पास करवाएंगे तब तक उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी। जैसे ही हम उसके करंट को पास करवाना बंद कर देंगे तो उसकी जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस कर देगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो तब तक ही मैग्नेट है जब तक उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएट आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट। कि परमानेंट मैग्नेट जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं वो परमानेंट, उनको शेप दे देते हैं हम, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बने, दोनों में क्या डिफरेंस है कि बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ को, किसकी स्ट्रेंथ को, बी की स्ट्रेंथ को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, करंट की हेल्प से। मींस वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय इंक्रीजिंग द करंट, और वी कैन डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय डिक्रीजिंग द करंट। क्लियर, बट वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। कि परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ को ना तो हम कम कर सकते ना ही हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। डीमैग्नेटाइज कैसे करिए, इसमें से हमने करंट फ्लो करना बंद कर दिया तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बन गया, नॉर्मल, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस हो गई। लेकिन हम जो परमानेंट मैग्नेट है उसको हम इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये आपका साउथ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। लेकिन हम किसी भी परमानेंट मैग्नेट के पोल को चेंज नहीं कर सकते, मींस वी डज नॉट चेंज द पोलैरिटी। अब इसको एक पॉइंट में समझा देता हूं कि वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बट वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट। क्लियर, we can demagnetize electromagnet easily but we cannot demagnetize permanent magnet easily. We can change the polarity of the electromagnet but we cannot change the polarity of a poles को हम चेंज नहीं कर सकते, किसके, परमानेंट मैग्नेट के। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ पे होता है, ये आपका जो यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट के आपके मिक्सचर में इसका यूज है, इसका ग्राइंडर, दैट योर स्पीकर्स, इन सब के अंदर आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं हम। आपके पेज नंबर 228 पे, पेज नंबर 228 के ऊपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इन टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। कि आपने बार मैग्नेट के अराउंड क्या ड्रॉ करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, दो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दो नीचे से ड्रॉ करेंगे और फिर एक स्ट्रेट यहाँ से, फिर एक ये ऐसे और एक ये ऐसे। इसके बाद यहाँ पे एरो डाल लेंगे क्योंकि आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड आएंगे साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपका आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फोर्सेज, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्या, क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व है, नॉर्थ से साउथ चलती हैं, आउटसाइड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ चलती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्लियर। किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अगर वो क्राउडेड है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर उनके बीच में गैप ज़्यादा है तो फील्ड क्या होगा, वीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो हमने डिस्कस किया था कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इनको इंटरसेक्ट कर लिया। क्लियर। तो अगर ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर लिया, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर मैं इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो हमें वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं बेटा, फॉर एग्जांपल पहले इसके लिए ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट ऐसे आएगी, फॉर एग्जांपल इस लाइन के लिए टेंजेंट ऐसे आई और इसके लिए टेंजेंट ये ऐसे आएगी। तो आपने क्या देखा कि देयर आर द टू टेंजेंट्स। क्लियर। तो अब हमने क्या कहा कि व्हेन वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, इसके इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की और इस टेंजेंट जो होती है ये हमें देती है डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताती है अपने को, ये डायरेक्शन ऑफ अ
बी, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की हमने, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अगर यहाँ पे 2 टेंजेंट है, इसका मींस यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, किसकी, बी की। लेकिन बी की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। एक ही पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इसलिए आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इसको लिखें कैसे, कह रहा व्हेन 2 मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, क्लियर। सो if they intersect each other at if 2 magnetic field line intersect with each other at a point, so at that point there are the 2 tangents, there are the 2 tangents। अगर वहां पे क्या है, 2 tangent है, so if there are the 2 tangents means there are the 2 direction of magnetic field, but the 2 direction of magnetic field is not possible, magnetic field only and only have 1 direction, so that's why magnetic field line never intersect with each other। So this is your question which are is on the page number 228। so there is also one more question on page number 228, that is a question of solved question है NCERT। a current through a horizontal power line flow from east to west, कि आपका करंट है वो आपका जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ये आपका ईस्ट था, ये आपका क्या है, वेस्ट है। दैट इज 13.1 क्वेश्चन है, 13.1 कि आपका करंट है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, means this is the direction of current। the question is that what is the direction of magnetic field at a point directly below and at a point directly above। आपने इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, मान लो ये P है और ये आपका क्या है, Q है, इस P और इस Q के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, क्या होगी। तो बेटा अगर फील्ड की डायरेक्शन बताने कल हमने बताया था, इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करेंगे अपन, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, clear। so if you use right hand thumb rule, तो again take your right hand, this is your right hand and thumb is in the direction of current, then your curl finger will give the direction of magnetic field। so जब हम इसको ऐसे करते हैं तो नीचे वाले पॉइंट से फील्ड लाइन आ रही है अपवर्ड, आ रही है नीचे के लिए अपवर्ड, तो इसके लिए जो डायरेक्शन है वो आपकी हो जाएगी आउटवर्ड, क्लियर। मीन्स क्यू पॉइंट के लिए जैसे मैंने उंगली रखी यहाँ पे, तो देखो अगर यहाँ पे क्यू पॉइंट है मीन्स ये आपकी ये करंट है, अगर यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है तो इसके लिए फील्ड लाइन कहाँ ऊपर आ रही है, लेकिन जब पी को देखते पी में घूम के ये नीचे पी में जा रही है, तो जो पी के लिए डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन कि द फॉर डाउन साइड द डायरेक्शन इज आउटवर्ड, फॉर द अप साइड द डायरेक्शन इज इनवर्ड। तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपका सोल्व दिया हुआ यहाँ पे। उसके बाद आपके यहाँ पे पेज नंबर 229 पे क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ अ टेबल, लेट द करंट passes through the loop clockwise, apply the right hand thumb rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop। वेरी इजी। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये पहला क्वेश्चन है कि ये आपकी कोई यहाँ पे लूप है, दिस इज योर लूप, क्लियर, लूप दे रखी है और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज, ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी भाई क्लॉकवाइज, कि ये जो आपका करंट है ये ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। अब आपने इनसाइड बतानी है और आउटसाइड बतानी है, तब आपने क्या करना है, अब यू हैव टू होल्ड दिस वायर इन अ सच अ वे दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब ऐसे होल्ड किया मैंने तो हमने क्या देखा कि करंट तो नीचे की तरफ आ रहा है, करंट आ रहा है आपका नीचे की तरफ, लेकिन मेरी उंगलियां का ऊपर की तरफ है, क्लियर। अगर मैं यहां से होल्ड करता हूं यहां से बिल्कुल सही है, क्लियर। अब अगर आप यहां से होल्ड करोगे तो आप इसको ऐसे होल्ड करोगे, ऐसे, क्लियर। अगर आप इसको यहां से होल्ड करोगे तो इसको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। तो जब इसको मैं ऐसे होल्ड करता हूं, ये मेरी जो उंगलियां हैं बाहर की तरफ, जो बाहर वाले एरिया उसमें क्या आ रही है, आ रही है ऊपर की तरफ, लेकिन जब ये उंगलियां घूम के यहां पे आएंगी तो अंदर वाले पार्ट के लिए कहां आ रही है, ये दैट आर कमिंग इन साइड, इनवर्ड। अगेन आई एम रिपीटिंग, मान लो मैंने यहां से पकड़ लिया इसको, ये देखो ये करंट है, अगर मैं बाहर को देखता हूं, इस रीजन में देखता हूं मेरी फिंगर्स को, तो ये मेरी फिंगर्स इस रीजन में कहां आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, और इस रीजन में फिंगर कहां जा रही है, इनसाइड जा रही है। तो इसके जो आउटसाइड जो फील्ड होगा वो होगा आउटवर्ड, और जो इनसाइड फील्ड होगा वो होगा इनवर्ड। तो ये आपका सिंपल सा रूल है, करना कुछ नहीं है बेटा, आपने ऐसे हाथ को यहाँ रखना है, क्लियर, ये रखा है ऐसे, आपने फिर अपनी उंगली को ऐसे मोड़ना है, तो उंगलियां कहां आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही हैं बाहर के लिए, तो ये मींस दिस फील्ड इज आउटवर्ड फॉर आउटसाइड।
अब इस उंगलियों को पूरा घुमाओ, ये घुमा दिया आपने। अब ये उंगली अंदर चली गई, अब अंदर उंगली की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। तो इनसाइड डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, और आउटसाइड डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। क्लियर? ये सभी के लिए नहीं कि हर बार आंसर इनवर्ड आउटवर्ड की, इन के लिए इनवर्ड और आउट के लिए आउटवर्ड नहीं। अगर डायरेक्शन क्या होती है अपनी यहाँ पे एंटी क्लॉक होती है, लाइक दिस। तो अगर अब हम इसको होल्ड करते, अब देखो यहाँ पे अभी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब जो इनसाइड है उसके लिए फील्ड लाइन क्या है, आउटवर्ड आ रही है। क्लियर? और जो बाहर के लिए आ रही है वो आ रही है, इनवर्ड आ रही है। मीन्स कुछ नहीं करना, आपने अपने हाथ को ये रखा, देखो मैंने ऐसे थंब क्या करंट की डायरेक्शन में। अब इस उंगलियों को मोड़ो आप, अब ये उंगलियां अंदर से हैं, अंदर और अंदर कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, तो फील्ड क्या होगा आपका, आउटवर्ड। अब इन उंगलियों को घुमाया मैंने, जब मैं बाहर गया तो ये बाहर जो आपकी उंगलियां वो कहाँ अंदर की तरफ है, तो बाहर के लिए फील्ड क्या होगा, इनवर्ड हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेड। जो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि किसी भी फील्ड के लिए यूनिफॉर्म फील्ड के डायग्राम ड्रॉ करो। तो बेटा यूनिफॉर्म फील्ड की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वहां पे जो फील्ड लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी। तो ये आपका डायग्राम आ गया किसका, यूनिफॉर्म फील्ड का। दीज आर द पैरेलल लाइन एंड इक्वली स्पेस्ड, इनके बीच में गैप भी बराबर होना चाहिए और एक दूसरे के ये पैरेलल भी होनी चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड करंट, सोलिनॉइड कैरिंग करंट, एक सोलिनॉइड है उसके इनसाइड फील्ड कैसा होगा। अभी मैंने पढ़ा था कि जो इनसाइड फील्ड लाइन है कि ये आपकी कोई भी सोलिनॉइड थी तो एक स्ट्रेट लाइन थी, उसके बाद फिर ये ऐसे था। तो जो इनसाइड है वो फील्ड लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, बाहर जाके गैप बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर इनसाइड पैरेलल तो यहाँ पे फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म के साथ साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसने ऑप्शन दे रखा है 0, 0 इज द रॉन्ग आंसर। डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द एंड्स, कि जब हम बाहर की तरफ जाते हैं क्या डिक्रीज करता है, कि जब हम बाहर की तरफ जाते हैं सोलिनॉइड से क्या वो डिक्रीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द एंड, कि जब हम इंक्रीज करता है। उसके बाद आपको कहता है इज द सेम एट ऑल पॉइंट, क्या कह रहा है सभी पॉइंट बराबर है। इसका ऑप्शन है बेटा कि जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो ये गैप बढ़ता रहता है और फील्ड आपका क्या होता रहता है, डिक्रीज करता रहता है। तो ऑप्शन इज बी, डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द एंड। So this is your question on page number 230. So today we have completed 2 topic. So now we will see the what is next topic. The next topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. So now we will discuss it कि what is the topic. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या है बेटा कि ये आपका एक मैग्नेट है, इसको कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। क्या कहते हैं उसको आपका, हॉर्सशू मैग्नेट, बिकॉज इट इन द शेप ऑफ हॉर्सशू। और ये आपका कंडक्टर है AB। क्लियर? तो टॉपिक आपका है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर को हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और जैसे हम इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे तो आपको पता है कि दिस कंडक्टर AB बिकम अ मैग्नेट। अब हमने देखना है, सिंपल सा पॉइंट बेटा ये है कि जब दो मैग्नेट एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अब ये आपका क्या है, दिस इज योर परमानेंट मैग्नेट, और ये आपका क्या है, ये आपका है वी कैन से दैट मैग्नेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब जो ये है बेटा ये फिक्स है, दिस इज फिक्स, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि ये हिल नहीं सकता, लेकिन दिस कंडक्टर कैन फ्रीली मूव। ये कंडक्टर फ्रीली क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर? तो अब हमने क्या देखा, ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, किसकी वजह से, करंट के फ्लो होने की वजह से। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो इसमें से करंट आएगा और ये करंट यहां से होता हुआ ऐसे पहुंचेगा, तो ये भी क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। अब जब दो मैग्नेट एक दूसरे क्लोज आएंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये फिक्स है, ये हिल नहीं सकता, लेकिन ये आपका हिलेगा। या तो ये फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया और यहाँ पे क्या बन गया, साउथ पोल फॉर एग्जाम्पल, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होगी, तो ये आपका मूव करेगा साउथ की तरफ। और अगर यहाँ पे क्या आ गया बेटा, साउथ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, तब आपका ये इस नॉर्थ की तरफ, मींस देयर इज अ मोशन इन द कंडक्टर। ये मोशन किसकी वजह से है, यहाँ पे आया फोर्स। तो यही आपका टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, सो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, दैट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस। अब ये एंगल क्या है, थीटा जो है, ये एंगल है बेटा B और I के बीच में। मींस अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का एंगल है ये,
क्लियर। अभी ये सभी कंक्लूजन यहां से निकली कि जो आपका एफ था, फोर्स जो इस कंडक्टर ने एक्सपीरियंस किया, वो किस पे डिपेंड किया, दैट इज बी आई एल साइन थीटा। क्लियर। यहाँ पे पर्सनैलिटी का साइन तो यहाँ पे लिखा मैंने के, दैट इज बी आई एल साइन थीटा। क्लियर। और इस के की वैल्यू को मैंने वन ले लिया, तो एफ आपका आ गया बी आई एल साइन थीटा। तो आपका जो कंडक्टर है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बी पे। बी मतलब इसकी स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना ज्यादा इसने फोर्स एक्सपीरियंस करना है। दूसरा करंट, कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस कंडक्टर में से करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो ये कंडक्टर फोर्स भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, ज्यादा। क्यों, ज्यादा करंट, तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। उसके बाद लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा ही क्या एक्सपीरियंस फोर्स। और दूसरा एंगल, अभी एंगल की बात को समझना आपने, क्या एंगल, एफ आ गया बी आई एल साइन थीटा। अगर मैं थीटा को लेता हूं 0, तो ये बन जाता है एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0। तो आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन 0 क्या होगा आपका, दैट साइन 0 इज इक्वल टू होता है, ये आपने पढ़ लिया होगा मैथमेटिक्स में, आपका चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री वहां पे पढ़ोगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ याद रखना साइन 0, अगर मैं यहाँ पे साइन 0 डिग्री बोल देता हूँ तो साइन 0 डिग्री होता है बेटा 0, तो आपका एफ क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से पता लग गया बेटा क्या, अगर बी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। जैसे ये बी है और इधर ही क्या आपका आई है, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो आपका फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आपके कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं ले लेता हूं थीटा इज इक्वल टू 90, क्या ले लिया मैंने, थीटा को 90 ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे 90 पुट करता हूं तो आपका आ जाएगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल। जब यहाँ पे साइन को अपन 90 पुट करेंगे तो साइन 90 होता है 1 बेटा, कितना होता है साइन 90, 1। अगर अभी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बेटा, आगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे वहां पे आपको क्लियर होगा कि ये 90 क्या चीज है और ये 0 क्या चीज है। लेकिन अभी सिर्फ याद रखना है कि 0 मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब आपके फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। 90 मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कि जब आपका करंट और बी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तब आपका जो फोर्स होगा बी आई एल। और ये केस जो आपका है, इस केस में जो फोर्स होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा, फोर्स आपका मैक्सिमम। क्लियर। अब बात करते हैं कि फोर्स का मैक्सिमम है। क्लियर, कि जब आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री मींस व्हेन यूर करंट कैरी कंडक्टर, आपका जो करंट कैरी कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और यहां से फिर आपका निकल के आएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है उसको हम पढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने डिस्कस करना है अभी यहां से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल कुछ नहीं बेटा, जो भी अपने पॉइंट लिखा है ना वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस a force। क्लियर। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या है मैं आपका रूल ये, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड perpendicular to the magnetic field it experience a force। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा जो फोर्स था वो क्या था, बी आई एल साइन थीटा, थीटा कितना 90, तो बी आई एल, और दैट फोर्स इज मैक्सिमम। मीन्स जब आप किसी करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखोगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसको सिंपल से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जैसे ये आपका ऐसे था कि अगर बेटा ये बी है और ये आपका क्या है, आई है, ये करंट की डायरेक्शन है और ये फील्ड की डायरेक्शन है, तो आपका जो ये फोर्स होगा ये एफ यहाँ पे, मीन्स जो करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी इनके परपेंडिकुलर होगी। ये आपका थर्ड एक्स होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, सॉरी ये होता है एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अब इसको हमने समझना है कि क्या बोल रहा है इसने यहाँ पे, कि ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है, दिस इज 3D, कि अगर करंट ऊपर की तरफ है और आपका जो फील्ड इधर की तरफ है, जो फोर्स होगा इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। अब क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल,
फ्लेमिंग हैव लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट कि स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, कि अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करो। कैसे कि आपका थंब, आपकी पहली उंगली और ये उंगली मिडिल फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या है रूल? स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन अ सच अ वे दैट योर थंब, योर फर्स्ट फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इस थंब में और इस उंगली में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। तो व्हाट इज द रूल? कि स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन अ सच अ वे दैट योर थंब, योर फर्स्ट फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसके बाद द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की। क्लियर? थंब किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स। क्लियर? योर फर्स्ट फिंगर, दिस इज योर फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज एफ बी, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड आफ्टर दैट मिडल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सिंपल सा रूल है कि लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करना है? कि थंब, ये उंगली और ये उंगली मीन्स थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये याद रखना है FBI, याद करना है FBI को। ये एक ट्रिक कह सकते हैं आप। FBI, जो FBI है बेटा, दैट इज अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन USA। तो उससे याद रखेंगे FBI, बस आपने रखना FBI। तो FB एंड I, दिस इज F, दिस इज B एंड दैट इज I। तो इसको आप FBI से याद रखोगे। थंब किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की। फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी? फील्ड की। और मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी? करंट की। अब इनमें से तीनों में से आपको दो पता होना चाहिए। अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन पता है और आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको थंब की डायरेक्शन पता है और इसकी फोर्स की डायरेक्शन पता है और फील्ड की डायरेक्शन, तो आप करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो दिस रूल इज यूज टू, अब ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल था वो किसकी डायरेक्शन के लिए? मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है दैट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? विच फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। विच फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपका था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद बेटा हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। We will discuss questions. So first we will discuss that small portion we will discuss here कि what is the direction of force, की force कहाँ पे है। अब इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। देखो क्या है, ये 3D में आएगा बेटा। देखो ये आपका क्या है? B की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन? I की डायरेक्शन है। तो लिया मैंने लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड लिया, दिस इज माई लेफ्ट हैंड। अब आपने इस लेफ्ट हैंड को इनके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। करें इसको? चलो देखते हैं। ये I है, ये B है, तो इसमें क्या था? FBI। क्या ये अरेंज हो गया? देखो F को भूल जाओ अभी। ये क्या था? B। क्या मेरी उंगली B की डायरेक्शन में है? बिल्कुल है। क्या मेरी ये उंगली I की डायरेक्शन? बिल्कुल है। तो थंब कहाँ पे है? थंब है इनवर्ड। इनवर्ड मतलब इनसाइड है। तो ये आपका आ गया फोर्स F। कहाँ पे आएगा वो? इनवर्ड। क्लियर? या इनटू द पेपर। क्लियर? अब अगर मैंने क्या किया, इनमें से किसी एक की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ये इधर आ गया। क्लियर? अब हम देखना है कि भाई ये B था, ये I था, तो अब F कहाँ पे होगा? फिर से लिया राइट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना, तो लेफ्ट हैंड रूल लिया, दिस इज F, दिस इज B, दिस इज I। अब इसको फिर से अरेंज करना है, क्या ये सही है? नहीं है। अब देखो क्या सही है? देखो दिस इज F आउटवर्ड, दिस इज B, ये देखो B उसकी डायरेक्शन में और I कहाँ पे? ऊपर की तरफ है। तो मीन्स आवर हैंड इज properly arranged, then your thumb will give the direction of force. The force direction is outward. यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी इसकी? आउटवर्ड। क्लियर? आउट टू द पेपर, आउटवर्ड लिख सकते हो आप, दिस इज आउटवर्ड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तीन चीजें आपने समझनी है बेटा। ये टॉपिक हमने शुरू कर ही दिया तो इसको पूरा ही समझा देते हैं क्या इसके अंदर। तो मैं तीनों डायग्राम लाता हूँ कि पहले ये डायग्राम था, तो जो आपका F था वो इनवर्ड था, अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो जब आपका ये था तो ये B था, ये I था, तो आपका ये था आउटवर्ड, आउट, यहाँ पे क्या था? इनवर्ड। अब हमने क्या देखा कि अगर हमने इन दोनों में से एक की डायरेक्शन को रिवर्स किया, ये पहले उधर था तो फोर्स अंदर की तरफ था, फिर ये इधर आ गया तो फोर्स बाहर की तरफ हो गया।
तो मीन्स अगर हम इन दोनों में से एक की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन भी रिफर हो। पहले फोर्स अंदर की तरफ था, फोर्स क्या होगा बाहर की तरफ। अब इसी क्वेश्चन में दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, देखते हैं चलो क्या है। करंट ऊपर की तरफ था पहले, अब करंट आ गया नीचे की तरफ। ये करंट ऊपर था, करंट आ गया नीचे की तरफ, बी उधर था, तो एफ आपका ये इधर आ गया, ये बी की डायरेक्शन ये होगी और आई की डायरेक्शन आपकी ये होगी। अब फिर से अपने लेफ्ट हैंड को यूज करना है, तो पहले आप इसको जैसे मर्जी रखो। दिस इज बी, देखो ये बी था, अगेन दिस इज एफ, दिस इज बी, दिस इज आई। देखो रहना या तो डायरेक्शन क्या है, ये थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, तो यहाँ पे गया इनवर्ड। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, पहले भी इनवर्ड था, अब भी क्या है, इनवर्ड है। इसका मतलब यह कि इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो आपको दोनों में से सिर्फ एक की डायरेक्शन को ही रिवर्स करना है। अगर दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तब आपके फोर्स की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आए। और फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब आपका फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बेटा बताओ, उसको कमेंट में लिखोगे वी अंडरस्टूड वेल। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो अप टू हियर यू विल कंप्लीट इट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी द व्हाट इज नेक्स्ट इन दैट चैप्टर।